آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ضلع بلڈانہ میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کی غرض سے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو پہنچی چکل تھانہ ایئرپورٹ۔ ریاست مہاراشٹر کے گورنر اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا شایع نشان استقبال۔ AMC انتظامیہ کو مالی بحران سے باہر نکالنے میئر اور میونسپل کمشنر نے کس لی ہے کمر۔ ہفتے واری بازاروں میں سبزی فروشوں اور دیگر بیوپاریوں سے لائسنس فیس وصول کرنے کی دی میونسپل کمشنر نے اپنے ملازمین کو ہدایت۔ خواتین بچت گروپس کو مالی اعتبار سے مستحکم بنانے 25 فروری سے 1 مارچ تک علاقائی، ضلعی اور منی سرس سطح پر منعقد کی جا رہی ہے نمائش۔ ضلع کلکٹر و ZP کے CEO نے شہریان سے نمائش سے فائدہ اٹھانے کی اپیل۔ اور مقدس ماہ رمضان کے پہلے عشرے کے 7 دن ہو گئے مکمل، بندگان توحید روزے رکھنے میں ہیں مصروف۔ افطار کے لیے مختلف اقسام کے پھل بازاروں میں ہیں دستیاب، قیمتیں زیادہ ہونے کے بعد بھی کاروبار میں ہوا ہے اضافہ۔ خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو آج بلڈانہ ضلع میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی غرض سے چکل تھانہ ایئرپورٹ پہنچی، جہاں مہاراشٹر کے گورنر اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج صبح تقریباً 10:10 پر اورنگ آباد ایئرپورٹ پہنچی، جہاں ان کا استقبال گورنر آچاریہ دیورت نے گلدستہ پیش کر کے کیا۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر سماجی انصاف و ضلع کے سرپرست وزیر سنجے شیرساٹ، میئر سمیر راجورکر، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کلیان راؤ کاڑے، رکن اسمبلی پردیپ جیسوال، رکن اسمبلی انورادھا چوہان کے علاوہ ڈویژنل کمشنر جیتیندر پاپڑکر، ضلع کلکٹر دلیپ سوامی اور پولیس کمشنر پروین پوار بھی موجود تھے۔ بعد ازاں صدر دروپدی مرمو اور گورنر آچاریہ دیورت بھارتیہ فضائیہ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے طے شدہ پروگرام کے لیے شیگاؤں ضلع بلڈانہ روانہ ہو گئے۔ عظیم رہنماؤں کی مشترکہ جینتی کے موقع پر ایک اعزازی تقریب گزشتہ روز شہر میں منعقد کی گئی، جس کا افتتاح سابق علاقائی کمشنر ڈاکٹر پروشوتم بھاپکر کے ہاتھوں کیا گیا۔ تقریب کی صدارت رچنا سنستھا کے صدر انجینئر SD پانجھڑے نے کی، جبکہ افتتاح سابق ڈویژنل کمشنر ڈاکٹر پروشوتم بھاپکر کے ہاتھوں انجام پایا۔ مہمانان خصوصی میں ریٹائرڈ ڈپٹی انسپکٹر جنرل و اسٹیمپ ڈپٹی کنٹرولر صاحب راؤ نامدیو راؤ دوتونڈے، دیولگاؤں راجا میونسپلٹی کے صدر مادھوری تائی تشار شمپنے، میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد کی کارپوریٹر گنگا تائی بھیم راؤ بھورے، بزرگ سماجی کارکن رگھوناتھ پدمے اور ضلع پریشد رکن امول بابو راؤ لوہیکر شامل تھے۔ اس موقع پر حال ہی میں منعقدہ میونسپلٹی، میونسپل کارپوریشن اور ضلع پریشد انتخابات میں منتخبہ اراکین کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے بزرگ سماجی کارکنوں کو اعزازی نشان اور گلدستہ پیش کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ اسسٹنٹ پولیس کمشنر و ضلع پریشد رکن باڑا صاحب رگھوناتھ سونٹک کے بزرگ سماجی کارکن سریش لکشمن راؤ گولے، کارپوریٹر نند لال سریش گولے، سدھاکر بابو راؤ گائیکواڑ، لتا بائی سائی ناتھ کانڈے، منوج بنسی لال گانگوے، پشپا تائی اتم راؤ روستکر، اجول دیوی داس کچے، کاربھاری دیوراؤ لوہکرے اور سنندا سوپنل اڑسولے سمیت دیگر معزز شخصیات کا خصوصی اعزاز کیا گیا۔ تقریب کی نظامت CM رمنے نے انجام دی، جبکہ تمہیدی کلمات رتی لال کچے نے پیش کیے۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر پروشوتم بھاپکر اور GM پنڈیرکر نے عظیم شخصیات کے افکار کو سماجی زندگی میں اپنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدارتی خطاب میں ادارے کے صدر سکھارام جی پانجھڑے نے رچنا سنستھا کی آئندہ سرگرمیوں میں سماجی فلاح کے مزید مؤثر اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر انجینئر انل نمبھورے نے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ہیرا لال گتکھنے، انجینئر PS ٹومپنے،
परवीन बोर्डे, रमेश डोंगरे समेत बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। ये तकरीब समाजी यकजहती व फ़रोग़ देने और माशरे में मिसाली खिदमत अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई का बेहतरीन मजहर साबित हुई। खरं तर पहिल्यांदा मी रचना संस्थेचं मनापासून अभिनंदन करतो, कौतुक करतो की अनेक महापुरुषांच्या जसे संत रविदास, माझी जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई या सर्वांची एकत्रित जयंतीचा कार्यक्रम हा आज या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता। आणि कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नवनिर्वाचित जे काही नगरसेवक आहेत, जिल्हा परिषद मेंबर्स आहेत, नगराध्यक्ष आहेत, अशा विविध पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार आणि सन्मानही आज या संस्थेने या ठिकाणी ठेवला होता। सर्वजण अतिशय आनंदाने या ठिकाणी सहभागी झाले होते आणि नव्याने येणाऱ्या या सर्व नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांना लोकशाही पद्धतीमध्ये प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये योग्य समन्वय जर साधला असला तर किती उत्तम प्रतीचं काम होऊ शकतं याबाबतचे काही दाखले किंवा काही उदाहरणाच्या माध्यमातून त्यांना सांगण्यात आलं। त्यांनी साधारणतः जो काही माझाही 3 जिल्हा परिषदा किंवा महापालिका, नगरविकास विभागाचा आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी या सर्व पदावर काम करत असताना जो अनुभव जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातला आणि नगरविकास विभागाचा, नगरपालिका, महापालिका यांच्या सर्व संदर्भातला जो आहे तोही मला या ठिकाणी शेअर करता आला आणि त्यांना या निमित्ताने खूप शुभेच्छा देता आल्या। त्यांच्या हातामध्ये खूप मोठी शक्ती आहे, लोकप्रतिनिधी ते आहेत, त्यांचा वेगळा मान सन्मान आणि वेगळ्या कामाचा ठसा उमटू शकतो आणि म्हणून त्यांनी जर लक्ष दिलं, त्यांनी जर पाहिलं तर ते त्यांच्या भागाचा फार मोठ्या स्वरूपात कायापालट करू शकतात। या निमित्ताने त्याने सक्षम राहिलं पाहिजे, स्वतःची तब्येत चांगली सांभाळली पाहिजे, चांगल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या समाजात पेरल्या पाहिजेत, जे आपण चांगलं पेरतो तेच उगवतो असा हा सृष्टीचा नियम आहे। त्या अनुषंगाने प्रत्येकाने काम करावं। सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा मी दिलेल्या आहेत आणि प्रत्येकाला 100 वर्ष आयुष्य मिळावं अशाही शुभेच्छा दिल्या आहेत। या संस्थेचंही मनापासून मी कौतुक करतो की 40 वर्षापूर्वी स्थापन झालेली ही संस्था अविरतपणे वेगवेगळे लोकोपयोगी, लोककल्याणाचे आणि समाजाच्या कल्याणाचे कार्यक्रम घेत आहे। आता यानंतर तर आणखी मोठ्या स्वरूपात कार्यक्रमाचं नियोजन त्यांनी केलेलं आहे। अनेक पोलीस खात्यातले अधिकारी किंवा इतर अनेक विभागातले इंजिनियर्स असतील, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे अधिकारी यामध्ये आहेत, अनेक नगरसेवक आहेत। खूप मोठी ताकद या संस्थेच्या माध्यमातून, या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संस्थेकडे आहे, समाजासाठी आहे। समाजासाठी उत्तम प्रतीचं काम करणं, उत्तम शिक्षण मुलांना देणं, क्वालिटी एज्युकेशन देणं, व्यसनापासून दूर ठेवणं, स्वतःचं शरीर जे अमोल असा दागिना आहे त्याला सांभाळणं आणि जमेल तेवढं प्रगत होणं, विकसित होणं अशा प्रकारची चर्चा या निमित्ताने झालेली आहे। मी या सर्वांना मनापासून पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। थँक्यू सर। त्याचं छोटंसं रोपटं लावलं होतं, त्याचं वटवृक्षामध्ये रूपांतर झालेलं आहे आणि त्याच माध्यमातून आज मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला। काय सांगायचं? रचना संस्थेची स्थापना साधारणतः 40 वर्षापूर्वी झाली। तेव्हापासून रचना संस्थेनं अनेक समाजाला उपयोग पडणारे असे अनेक उपक्रम राबवलेले आहेत। आता नुकतंच रचना संस्थेच्या तर्फे आपण समाजाला उपयोग पडणारे भविष्यामध्ये म्हणजे उपयुक्त असे अनेक उपक्रम आपण राबवणार आहेत। उदाहरणार्थ आपल्या या शहरामध्ये गोरगरीब मुलांसाठी आम्ही हॉस्टेलचं प्लॅनिंग केलेलं आहे। रचना संस्थेच्या मालकीची रचना नक्षत्रवाडी येथे साधारणपणे 8 एकर 13 गुंठे जमीन आम्ही खरेदी केलेली आहे। सर्व यासाठी समाजानं मोठं योगदान दिलेलं आहे। या ठिकाणी मी म्हटल्याप्रमाणे हॉस्टेल, गुरु रविदासांच्या नावानं एक मोठं सभागृह, आरोग्याशी संबंधित काही उपक्रम, त्याचप्रमाणे काही इंग्रजी शाळेचं म्हणजे त्या ठिकाणी आम्ही सुरू करण्याचा एक उपक्रम हाती घेणार आहोत। अशा प्रकारे रचना संस्थेनं आगामी काळामध्ये काही कामं हाती घ्यायचं नियोजन केलेलं आहे। आज या ठिकाणी नगरसेवकांचा आणि सत्कार करण्यात आला, काय सांगितलं आपण? या ठिकाणी मी सांगितल्याप्रमाणे रचना संस्था नेहमीच समाजाला उपयोगी पडेल, समाजामध्ये एक ज्याला आपण मोटिवेशनल असं काही काम व्हावं या हिशोबानं काम करत असते। या संभाजीनगर शहराच्या महानगरपालिकेमध्ये समाजाचे जवळपास 4 नगरसेवक, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या या विविध ठिकाणी समाजाचे अनेक लोकप्रतिनिधी मोठ्याने निवडून आलेले आहेत।
त्यांचाही आम्हाला मनस्वी आनंद झाला होता. त्यामुळे त्यांचं कौतुक करण्यासाठी, त्यांचा सत्कार करण्यासाठी आम्ही आजच्या कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं होतं. समाजातील लोकांना काय आवाहन करणार तुम्ही? समाजातील लोकांनी फक्त आपलं स्वतःचं घर न बघता समाजाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आता मी तर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे रचना संस्था ही त्यांची प्रातिनिधिक स्वरूपातलं एक उदाहरण आहे. समाजाच्या लोकांनी त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. तन मन आणि धनानं त्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे, जेणेकरून समाजामधल्या तळागाळातल्या लोकांसाठी आम्हाला अधिक उमेदीने काम करता येईल. नांदेड़ शहर के बसवेश्वर कॉलेज में ज़ेर तालीम शीतल चिते नामी तालिबा ने जजगी के 4 दिन बाद ही 12वीं बोर्ड के इम्तहानात में शिरकत की और अपने हौसले और अज़्म का इजहार किया। शहर के श्री बसवेश्वर कॉलेज में ज़ेर तालीम शीतल चिते ने जजगी के सिर्फ 4 दिन बाद ही 12वीं बोर्ड इम्तहान में शिरकत करके एक मिसाली क़दम उठाया है। शीतल की जजगी 6 फरवरी को हुई, जबकि 10 फरवरी से बोर्ड इम्तहान शुरू हुए। जजगी के बावजूद उन्होंने इम्तहान न छोड़ने का पुख्ता अज़्म किया। वो अपनी सिर्फ 4 दिन की नौमौलूद बच्ची को साथ लेकर पीपल्स कॉलेज नांदेड़ के इम्तहानी मरकज़ पहुंची और पुरसुकून अंदाज में पर्चा हल किया। इम्तहानी मरकज़ पर मौजूद असातिज़ा और अमले ने उनकी हिम्मत और अज़्म की भरपूर सताइश की और उनके लिए खुसूसी तौर पर मातृ स्नेह हॉल का इंतज़ाम किया। इनके शौहर और अहल खाना ने भी भरपूर ताउन फराहम किया। जजगी के बाद जिस्मानी तकालीफ के बावजूद तालीम को तरजीह देते हुए उन्होंने जो इस्तिकामत दिखाई वो कई तालिबात के लिए मशअल राह बन गई है। शीतल का ख्वाब है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके मुस्तक़बिल में एक उस्ताद बने। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि हालात जैसे भी हों तालीम ज़रूर मुकम्मल करेंगी। उनकी इस जुर्रत और तालीमी लगन की हर तरफ से सताइश हो रही है और वो दीगर तालिबात के लिए एक मुतासिर कुन मिसाल बन चुकी है। शीतल चंद्रकांत चिते आहे। मी महाविद्यालय बसवेश्वर येथील बसवेश्वर महाविद्यालय येथील मी विद्यार्थिनी आहे आणि माझा पीपल्स कॉलेजला नंबर आलेला आहे। पीपल्स कॉलेजच्या सरांनी माझ्यासाठी मातृस्नेह कक्ष हे ओपन केलेले आहे। त्या कक्षामध्ये माझ्या बाळासाठी एक झुला ॲडजस्टमेंटसाठी आणून दिलेला आहे आणि तिथं माझी सिस्टर असते की बाळाला देखभाल वगैरे करणे आणि माझ्यासाठी एक हॉल आहे। हॉलमध्ये एक चेअर एक टेबल आहे आणि माझ्यासाठी सरांनी पेपर एका हॉलमध्ये मला एक दिलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही पेपर देताय, पुढे चालून काय व्हायचं, तुमचं काय स्वप्न आहे? मला एक शिक्षिका बनायचं आहे सर आणि माझा पेपर जर दिला तर मी बहुतेकच शिक्षिका होईल। तर आम्ही म्हणले होते की सर मला पेपर पुढे द्यायला, मी पेपर जर दिले तर मी शिक्षिका बनेन, नाही दिले तर मी का शिक्षिका बनेन। तर माझ्या हसबंडने मला म्हणले की तुझ्या मनातच आहे पेपर द्यायचं ती दे, मी तुझ्या पाठीशी आहे। आणि घरच्यांचा पण प्रतिसाद, घरच्यांनी पण मला बराच सपोर्ट केलाय। तू आता सीजर केलेली आहे तर तू कशी जाशील, तर मी म्हणले की माझ्यावर ते सगळं सोडून टाका, फक्त तुम्ही मला साथ द्या की मी पेपर देईल। सर, गेल्या काही दिवसापासून आपल्या महाविद्यालयामध्ये एक विद्यार्थिनी पेपर देत आहे आणि अवघ्या काही दिवसाचं बाळ आहे, ते बाळाला घेऊन ते पेपर देत आहे आणि तुम्ही कॉलेजकडे त्यांची व्यवस्था देखील करण्यात आल्याची आहे। काय भावना आहे, काय सांगाल, कशी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे? नमस्कार। 10 फेब्रुवारीपासून आपल्या सेंटरवर 12वीच्या परीक्षा सुरू झालेल्या आहेत आणि पहिल्या दिवशी इंग्रजीच्या पेपरलाच आम्हाला कळालं की एक 2 दिवसाचं बाळ घेऊन एक विद्यार्थिनी आली होती। त्यामुळे परीक्षा केंद्र प्रमुख आणि आम्ही कॉलेज प्रशासनानं निर्णय घेतला की यांची एक व्यवस्था करण्यात यावी, कारण 2 दिवसाचं बाळ होतं त्या दिवशी। त्या अनुषंगाने मग आम्ही मात्र स्नेह असा एक कक्ष स्थापन केला आणि तिथे बाळाची 3 घंटे बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे। एक झुला पण आम्ही तिथे टाकलेला आहे। त्यामुळेच त्या मुलीमध्ये कॉन्फिडन्स आलेला आहे आणि ती बाकीचे पेपर जे आहेत आता ते अत्यंत कॉन्फिडेंटली सोडवत आहे। आणि विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षार्थींसाठी वेगवेगळ्या सुविधा पुरवणे हे केंद्राचं एक कामच असते, ते किंवा एक आमची नैतिक जिम्मेदारी आहे। त्या भावनेतून त्या दृष्टिकोनातून आम्ही हे मातृस्नेह कक्ष सुरू केलेला आहे। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने तमाम HODs की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की, जहां
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के लिए कई अहम फैसले करते हुए उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे की खातिर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका शोबा सदर को हफ्तावारी बाज़ारों में सब्ज़ी फरोशों और दीगर व्यापारियों से ज़्यादा लाइसेंस फीस वसूल करने की हिदायत दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत शहर में जारी सभी हफ्तेवारी बाज़ारों के तवस्सुत से सालाना 7 से 8 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस वसूल करने का टारगेट भी म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने अफसरान को दिया है। अलावा अजीब पानी और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का तनासुब बढ़ाने के लिए जी श्रीकांत ने सभी जोन के असिस्टेंट कमिश्नर्स और वसूली पर मामूर अफसरान को हुक्म दिया कि हर एक जोन में की जाने वाली पानी और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की मुकम्मल तफसीलात जमा करें। जिस इलाके में पानी और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का तनासुब कम हो, उन इलाक़ों में टैक्स वसूली को यकीनी बनाने ठोस इक़दाम किए जाएँ। श्रीकांत ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि जिस इलाके में पानी और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली 80% से कम हो, उन इलाक़ों में ड्रेनेज, पेवर ब्लॉक्स की तनसीब और रास्तों के तामीरी काम बिल्कुल भी न किए जाएँ। शहरियान को बल्दी सहूलतें मतलूब हैं तो उन्हें टैक्स अदा करना लाजमी है। टैक्स अदायगी नहीं तो बल्दी सहूलतें भी नहीं। ये फैसला करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने सभी जोन के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हुक्म दिया कि वह अपने अपने जोन की टैक्स वसूली की मुकम्मल और सही तफसीलात पेश करें। जोन के किस इलाके में कितना टैक्स वसूल हुआ है, जुमला इमलाक कितनी है, किन किन मकानात पर कितना प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी बाकी हैं, कितने मकीनों ने टैक्स जमा करवाया है और कितने मकीनों पर टैक्स बाकी है, दिए गए टारगेट के मुकाबले जुमला वसूली कितनी की गई है, ये तमाम मालूमात बर वक्त पेश की जाए। यौमिया, हर हफ्ता और हर महीना टैक्स वसूली का जायज़ा लिया जाएगा। ये हुक्म भी जी श्रीकांत ने जोन अफसरान को दिया। औरंगाबाद ज़िले के रजिस्ट्री दफातर में अफसरान के मनमाने कारोबार से शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, जिसके सबब एक बरहम शहरी ने रजिस्ट्रार की कुर्सी पर बैठकर वहां के कामकाज संभालने की कोशिश की। औरंगाबाद ज़िले के सब रजिस्ट्रार दफातर में बदइंतज़ामी और मनमानी का मामला खुलकर सामने आ गया है। शहर में मौजूद 3 में से सिर्फ 2 सब रजिस्ट्रार दफातर ही फ़आल होने के बाद पहले ही काम का शदीद दबाव है। इसके अलावा अफसरान का वक्त पर हाजिर न होना, बार बार सर्वर डाउन हो जाना, ऑनलाइन निज़ाम बंद होने और आधार तस्दीक मुअत्तल होने जैसे बहाने दिए जाने से शहरियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसी पस मंज़र में सब रजिस्ट्रार दफ्तर नंबर 2 में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। अफसरान की ताख़ीर से नाराज़ एक खानगी शख्स अबुल आला हाशमी बराह रास्त रजिस्ट्रार की कुर्सी पर जा बैठा और सरकारी दस्तावेज़ात संभालने की कोशिश की। उसने दावा किया कि मुझे अवाम ने मुकर्रर किया है और ख़ुद ही दफ्तरी उमूर अंजाम देने लगा, जिससे दफ्तर में हंगामा मच गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर केस दर्ज कर लिया। ताहम इस हंगामे के बाद दफ्तर पूरा दिन बंद रहा, जिससे तकरीबन 500 शहरियों के काम मुतासिर हुए। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 1 से 1.5 करोड़ रुपये के सरकारी रिवेन्यू का नुकसान भी हुआ है। मुसलसिल तकनीकी खराबियों, अफसरान की गैरहाज़िरी और बढ़ते हुए दबाव के बाद शहरियान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जाँच करके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और दफ्तरी निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। तालुका खुल्दाबाद के तमाम घरकुल मुस्तहिक़ीन को 5 ब्रास रेत मुफ्त फराहम करवाई जाए। इस मतालबे पर एक मेमोरेंडम तहसील इंतज़ामिया को पेश किया गया। तालुका खुल्दाबाद के शहरियान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मिलने वाली महदूद इमदाद से घर की सादा बुनियाद बेसमेंट भी तैयार नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से घरकुल मुस्तहिक़ीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल रुकन असम्बली प्रशांत बम ने घरकुल मनसूबे के जायज़ा इजलास में सरकारी रेट डिपो कायम करने की हिदायत दी थी, ताहम अब तक इस पर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जिससे मुस्तहिक़ीन में नाराज़गी पाई जा रही है और कई अफराद तामीरी काम शुरू करने में ताख़ीर कर रहे हैं। इसी पस मंज़र में घरकुल मुस्तहिक़ीन की जानिब से तहसीलदार को जल्द अज जल्द रेल डिपो शुरू करने के मुतालबे पर मुश्तमिल तहरीरी दरख्वास्त पेश की गई।
इस मौके पर संजय जाधव, भाव साहब बनकर, राहुल काड़े, कलीम पठान, सैयद उस्मान, संतोष काड़े, दिलावर पठान, बाबा साहब नरोड़े, विलास भालेराव, अमोल बनकर समेत बड़ी तादाद में शहरियान मौजूद थे। उम्मीद महाराष्ट्र स्टेट रियासती देही रोज़गार मिशन के तहत इलाक़ाई, ज़िलाई और देही सतह पर नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसमें ख़वातीन बचत ग्रुप्स के हाथों तैयार करदा अशिया के 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और ज़िला परिषद के CEO अंकित ने शहरियान से इस एग्ज़िबिशन का फ़ायदा उठाने की अपील की है। उम्मीद महाराष्ट्र रियासती देही रोज़गार मिशन के तहत डिविजनल, ज़िलाई और मिनी सरस नुमाइश का आज से 1 मार्च तक आगाज़ हो चुका है। इस नुमाइश का बुनियादी मकसद देही इलाक़ों की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी ख़ुद इमदादी ग्रुप्स की ख़वातीन की तैयार करदा मसनूआत को वसी बाज़ार फराहम करवाना और उनके कारोबार को फ़रोग़ देना है। इस साल नुमाइश में मजमूई तौर पर 150 स्टॉल्स का मंसूबा बनाया गया है, जिनमें डिविजनल सतह के 57, ज़िलाई सतह के 18 और मिनी सरस के तहत 75 स्टॉल शामिल हैं। ख़ास बात यह है कि दीगर अज़ला के 60 जबकि मकामी ज़िले के 90 स्टॉल्स इस नुमाइश में शरीक हैं। नुमाइश में मजमूई तौर पर 138 अशिया तैयार करने वाले ग्रुप्स और 30 फूड ग्रुप्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ दस्तकारी, घरेलू मसनूआत, नामियाती यानी ऑर्गेनिक अशिया और रिवायती खानों समेत मुख्तलिफ़ मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। देही ख़वातीन की मेहनत को मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करने, उनकी मसनूआत को बराह रास्त सारिफिन तक पहुँचाने और ख़ुद किफ़ारत को फ़रोग़ देने के मकसद से इस अज़ीमुश्शान नुमाइश का इनेकाद किया गया है। ज़िला परिषद की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करके देही ख़वातीन के कारोबार को ताउन फराहम करें। जिल्हास्तरीय आणि विभागीय स्तरीय बचत गटाच्या वस्तूची प्रदर्शन आणि विक्रीचं उद्घाटन या ठिकाणी झालं। अतिशय दर्जेदार उत्पादन बचत गटाने केलेलं आहे। मी सर्वांचं अभिनंदन करतो। महिला बचत गटांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे आणि जिल्हाभरामध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं अनेक उपक्रम घेऊन लखपती दिदी असतील मोठ्या प्रमाणामध्ये केलेले आहेत। बचत गटाला मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक पाठबळ देण्यात येऊन बचत गट सक्षम करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। आज या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा जे सरस महोत्सव आहे त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे। या ठिकाणी सन्माननीय पालकमंत्री महोदय, महानगरपालिकाचे महापौर महोदय तसेच सन्माननीय खासदार, सन्माननीय आमदार मॅडम सर्व उपस्थित होते आणि एक चांगल्या पद्धतीने याचं आयोजन केलं गेलेलं आहे। या ठिकाणी 150 स्टॉल्स लावलेले आहेत। त्याच्यासोबत एक मंडप आम्ही उभारलेला आहे जिथे अनेक प्रकारचे मार्गदर्शन आणि कल्चरल प्रोग्राम पण होणार आहे आणि त्याच्यासोबत एक फूड कोर्ट सारखे एक व्यवस्था आम्ही केलेली आहे जिथे अनेक प्रकारचे खाद्यपदार्थांचं सेवन लोकांना करता येईल। मी संभाजीनगर जिल्ह्याचे आणि विभागाचे सर्व लोकांना विनंती करतो की त्यांनी मोठ्या संख्येने इथे भेट देऊन बचत गटाचे प्रॉडक्ट्सची खरेदी करावी आणि त्यांना प्रोत्साहन द्यावं। धन्यवाद। नाव काय आहे आणि तुमचं? नमस्कार, माझं नाव शिवकन्या गोविंद मुरकुंदे। माझ्या समूहाचं नाव हरिओम स्वयंसहायता समूह। मी राहणार वडगाव कोल्हाटी, छत्रपती संभाजीनगर। कशाचा स्टॉल लावला? मी मसाल्याचा स्टॉल लावलेला आहे औरंगपुरा मैदानावरती। 25 ते 1 तारखेपर्यंत हे स्टॉल आहेत, आवश्यक भेट द्यावी सगळ्यांनी, ही माझी नम्र विनंती आहे। जिल्हा परिषदेकडून हा उपक्रम राबवला? हो सर, उमेद अभियानतर्फे जिल्हा परिषद हे खूप छान करते, म्हणजे महिलांसाठी एक बाजारपेठ आहे बा बचत गटाच्या मार्फत। बचत गटाच्या, हो, माझा हरिओम स्वयंसहायता समूह। आता गावातून आलेले होते, पण उमेद मार्फत आम्हाला जे गावाकडून आलेल्या लोकांना शहरी भागात कसं प्रोडक्ट विकलं जावं, म्हणजे त्याला मागणी कशी देता येईल जास्तीत जास्त, त्याच्याने आम्हाला जास्तीत जास्त उत्पन्न वाढेल आमचं आणि बायांना पण कामगार मिळेल, त्याच्यासाठी आम्हाला उमेदने खूप सपोर्ट केलेला आहे। कुठला स्टॉल लावला? सर, आमचा ऑल हिरकणी स्वयंसहायता समूह, केकतनी मुराद, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव इथून आलेत आम्ही आणि आमचे खानदेशचे प्रसिद्ध पापड आहेत, म्हणजे सगळ्यात जास्त आमची बिबडी फेमस आहे जळगावमध्ये, बिबडी वगैरे, आणि सगळीकडे याची मागणी खूप आहे। तुम्ही एक तरुणी आहात। हा, तर त्याचं मला काही वाटत नाही, कारण की मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे आणि जॉब सोडून मी इकडं कशामुळे आली हे पण वाटत असेल बहुतेक जणांना, आणि क्वेश्चन पण खूप आलेत मला याच्याबद्दल, पण
बिझनेसमध्ये दुसऱ्यांचं गुलामगिरी करण्यापेक्षा स्वतःचं मार्केट कधी पण चांगलं, म्हणजे स्वतःचं प्रोडक्ट तयार करून त्याला जास्तीत जास्त मागणी कशी उपलब्ध करून द्यावी ही आम्हाला उमेद करून चालेल. क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल की सालाना गैदरिंग शानदार माहौल में मुनक़िद की गई, जिसमें स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए। तक़रीब का आगाज़ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों चिराग रोशन करके किया गया। ज़रई पैदावार बाज़ार समिति के साबिक़ डायरेक्टर भास्कर मुरुमे पाटिल, चिकलठाना पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर रवि कुमार दरवाड़े, डॉक्टर शालिनी शाह, डॉक्टर गौतम शाह और इंजीनियर उदय भराड़े के हाथों तक़रीब का इफ्तिताह अमल में आया। समाजी हम आहंगी पर मबनी मौसर ड्रामा, होली डांस, ऑपरेशन सिंदूर की पेशकश और गणपति आराधना जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी प्रोग्राम्स ने तक़रीब को चार चांद लगा दिए। तलबा ने अपनी अदाकारी, रक़्स और बेहतरीन पेशकश से हाज़रीन की भरपूर दाद हासिल की। इस मौके पर रितीश राठौड़, आरोही मोनिका, काव्या कीर्ति, साक्षी गीता, मैथिली, वैष्णवी, आदर्श, आर्यान, वीर, कैफ, अजिंक्य, रोहित, सिद्धांत, सोहम, शिवराज, आराध्या, रोशनी, यादवी, स्वरांजलि, स्वारा, यश और दीगर तलबा ने शानदार शिरकत की। तक़रीब का इस्तक़बालिया और तारुफ़ी ख़िताब स्कूल के प्रिंसिपल SP जवड़कर ने पेश किए, जबकि नायब प्रिंसिपल अर्चना जवड़कर ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर विशाल ठेंगे, रवि शिंदे, प्रशांत मैरत काका जाधव, विजय गोरले, मच्छेंद्र वरपे, राजेंद्र खंडेलवाल, सुनील वाई, शशिकांत सिंघाशी, योगेश पाटिल, पृथ्वीराज वारंगोले समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। तक़रीब की कामयाबी के लिए संदीपा पडोल, माधुरी शीलार, सौजन्य शेंडके, वंदना सोनोने, नेहा मस्के, रेणुका शिंदे, NK गाड़ेकर, मंगेश बोर्डे, शिवाजी गाड़ेकर और मीना गाड़ेकर ने अनथक मेहनत की। इस स्नेह सम्मेलन से वालिदैन और हाज़रीन में खुशी और मसरत का माहौल देखने को मिला। भारतीय दलित पैंथर की जानिब से संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती जोश खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। भारतीय दलित पैंथर की जानिब से राष्ट्र संत और सोशल रिफार्मर संत गाडगे महाराज की 150वीं यौम पैदाइश इंतहाई जोश खरोश से मनाई गई। तकरीब के दौरान भारतीय दलित पैंथर के रियासती सदर लक्ष्मण भूतकर के हाथों संत गाडगे महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए उन्होंने संत गाडगे महाराज की समाजी बेदारी, सफाई मुहिम और तालीम के फ़रोग़ के लिए अंजाम दी गई खिदमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुआशरे को साफ़ सुथरा रखना, तोहम परस्ती को ख़त्म करना और अपने बच्चों को मेयारी तालीम देकर एक मजबूत नस्ल तैयार करके ही हम संत गाडगे महाराज के अफ़कार और ख़िदमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर सकते हैं और यही उनके लिए हकीकी खिराज अक़ीदत होगा। इस तकरीब में धम्मपाल दांडगे, दशरथ कामड़े, राधा किशन पाटेकर, रामदास पगड़े, मिलिंद गवई, मधुकर आराट, सुभाष खरात, पगारे बाबा समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। हाज़रीन ने संत गाडगे महाराज की तालीमात से तहरीक लेकर समाजी फलाह के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। इस जयंती प्रोग्राम के ज़रिए भारतीय दलित पैंथर ने समाजी हम आहंगी, साफ़ सफाई और तालीम का पैगाम देते हुए बेदारी की एक मुस्बत मुहिम चलाई। मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने में है। इस महीने फलों के कारोबार में इजाफ़ा हो जाता है, लिहाजा मुख्तलिफ़ अक़साम के फल बाज़ारों में दस्तयाब हैं। नाज़रीन, मुक़द्दस माह रमज़ान जारी है और पहले अशरे के 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। मुक़द्दस माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही जाधववाड़ी और शाहगंज के होलसेल और रिटेल बाज़ारों में बड़ी मिक़दारों में फलों की आमद हुई है। शहर के साथ साथ देही इलाक़ों से भी ताजिर यहाँ ख़रीदारी के लिए पहुँचने लगे हैं। दिन भर रोज़ा रखने के बाद शाम के वक्त इफ्तार में तवानाई फ़राहम करने वाले रसीले फलों को मुस्लिम बरादरी की जानिब से खुसूसी तरजीह दी जा रही है। यही वजह है कि अंगूर, तरबूज, खरबूजा, पपीता, अनानास, सेब और केले की मांग में
नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। ताजिरों के मुताबिक इस साल फलों की तलब में तकरीबन 5 से 10% तक इजाफा हुआ है और हर रोज़ शाम के वक्त बाज़ारों में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बाज़ फलों की कीमतों में मामूली इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका ख़रीदारों की ख़रीदारी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। रमज़ान के दौरान शहर की फल मंडियों में रोज़ाना लाखों रुपयों का कारोबार हो रहा है, जिससे ताजिरों में इत्मीनान का माहौल है। चंद दिनों में फलों के डिमांड में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी और दीगर 6 ज़ैली कमेटियों के मेंबरान की नामज़दगी के लिए 5 मार्च को जनरल बॉडी की खुसूसी मीटिंग तलब की गई है। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के 16 मेंबरान और 5 ज़ैली कमेटियों के मेंबरान की नामज़दगियों की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। इस ज़िमन में 5 मार्च को खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई है। इस जीबी में स्टैंडिंग कमेटी समेत 5 ज़ैली कमेटियों के मेंबरान की नामज़दगियों को मंजूरी दी जाएगी। नामज़दगियों के तमाम मामलात की इस जीबी में तकमील कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि कारपोरेटर्स की तादाद के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी में मुख्तलिफ़ पार्टियों के 16 मेंबरान की शमूलियत की जाएगी। सभी पार्टियों के ग्रुप लीडरान की जानिब से बंद लिफाफे में मेंबरान के नाम पेश किए जाएंगे। जीबी के दौरान इन लिफाफों को खोला जाएगा और मेयर स्टैंडिंग कमेटी मेंबरान के नामों का ऐलान करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के अलावा महिला व बाल कल्याण समिति, शिक्षण समिति, आरोग्य समिति और शहर सुधार समिति, इन 5 समितियों के मेंबरान की भी नामज़दगियों को भी इसी खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूरी दी जाएगी। इस मरहले के बाद सभी कमेटियों के नामज़द मेंबरान के नामों का डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में इंदराज करवाया जाएगा। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि स्टैंडिंग कमेटी के 16 मेंबरान के लिए बीजेपी के 8 कारपोरेटर्स को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिलेगा, जबकि एमआईएम के 33 कारपोरेटर्स हैं। इस तादाद की बुनियाद पर एमआईएम के 5 मेंबरान, 13 कारपोरेटर्स वाली शिंदे शिवसेना के 2 और 6 कारपोरेटर्स वाली शिवसेना उद्योग की जानिब से 1, इस तरह से जुमला 16 मेंबरान इस स्टैंडिंग कमेटी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लिहाजा तमाम मुंतखबा कारपोरेटर्स अपनी अपनी सियासी जमातों के आला कमान से ख़ुद के लिए स्टैंडिंग कमेटी में जगह बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई देने लगे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के क्लास 3 और क्लास 4 मुलाजमीन को जानबूझकर हिरासा करके उनके तबादले करने वाले कारगुजार डीन का फौरी ट्रांसफ़र किया जाए। ये मतालबा महाराष्ट्र स्टेट कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया गया। आपण जेव्हा एक XYZ वार्ड असतो, त्या वार्डमध्ये त्या 10 वार्डातील 10 वार्डाची मागणी काय आहे, म्हणजे कुणाला झाडू पाहिजे, कुणाला फिनेल पाहिजे, कुणाला स्लीपर पाहिजे, कुणाला जे काय आयटम पेपर लागत असतील, कुणाला कार्टेज लागत असतील, कुणाला काय लागतं याची मागणी घेत असतो। ती मागणी घेतल्यानंतर त्या मागणीचं एक समिती असते, त्या समितीला सांगितलं जातं, ती समिती यांनी रद्द करून टाकली आहे। त्या खरेदी समितीवर फक्त म्हणजे ज्या व्यक्तीला काम दिलेलं आहे, मी ज्या व्यक्तीचं नाव सांगतोय तुम्हाला, सिद्धार्थ साबळे जे नाव सांगतोय, हा ज्युनियर क्लर्क आहे आणि शासनाच्या नियमानुसार ज्युनियर क्लर्कला फक्त सहाय्यक म्हणून काम करावं लागतं। जो विभागाचा प्रमुख म्हणजे एखादा टेबलचं काम करायचं असेल तर त्याला तो वरिष्ठ लिपिक असतो, त्या वरिष्ठ लिपिकाला हा सहाय्यक म्हणून काम करतो ज्युनियर क्लर्क। आणि जो टेबल हा सांभाळतोय सिद्धार्थ साबळे, हा टेबल सहाय्यक वरिष्ठ सहाय्यकाचा आहे, म्हणजे वरिष्ठ लिपिकच्या वर एक पद आहे, त्या पदाचा आहे। पण पूर्ण घाटीची म्हणजे मेडिकल कॉलेजची आणि हॉस्पिटलची ही सगळी खरेदी ही सिद्धार्थ साबळे एकटा राबवतो। ते असेल, पण याची प्रक्रिया असते का तुमच्यासारखे 4 कॉन्ट्रॅक्टदार असतील ज्यांना हे काम करायचं असेल? हो, तर ही जी प्रक्रिया आहे ना, या प्रक्रियेमध्ये काय असतं माहिती का, जेव्हा हे 4 लोकांना म्हणजे एक जेम पोर्टल आहे, शासनाची कोणतीही खरेदी करायची असेल तर त्या जेम पोर्टलद्वारे करावं लागते प्रत्येक कार्यालयात। त्याच्यात तुमच्यासारखे अजून वेंडर पण पार्टिसिपेट करतात, खूप लोक असतात, पण त्याच्यात एक आहे ना,
एक यांनीच एक व्यक्ती आहे, तो जो व्यक्ती आहे तो बहुतेक तो हॅकर आहे. ज्या व्यक्तीला डीन सांगतील की या व्यक्तीला काम द्यायचंय त्याच व्यक्तीला ते जेम पोर्टलवर दिसतं, दुसऱ्याला दिसत नाही. अशी जी व्यवस्था आहे, ती व्यवस्था लावून देणारा जो व्यक्ती आहे तो नोकरीला नाहीये, आपल्या ऑफिसमध्ये कामाला सुद्धा नाहीये, परंतु त्या व्यक्तीला तो नसल्यानंतरही तो व्यक्ती तिथं येऊन बसतो आपल्या ऑफिसमध्ये. त्याला तो जे खरेदीची टेबल आहे त्या टेबलवर बसून स्वतः काम करतो. आणि विशेष म्हणजे ओएसच्या टेबल समोरचा टेबल आहे. बाहेरचा व्यक्ती कसं काय येऊन काम करू शकतो? त्या बाहेरच्या व्यक्तीची पण एक शूटिंग केलेली आहे मी. तो व्यक्ती हे बघा, हे आमचं ऑफिस आहे. हा बाहेरचा माणूस आहे. काय नाव त्याचं? याचं नाव सचिन आहे, सचिन हजारे नाव आहे. हा व्यक्ती सगळ्या सप्लायरचं एकटाच काम करतो. हा व्यक्ती याला कार्यालयात येऊन बसायची परवानगी कोणी दिली? मी याची सुद्धा कंप्लेंट सायबरला केलेली साहेब की हे हॅकर आहे म्हणून. परंतु सायबर मधून मला असं सांगण्यात आलं की तुम्ही ही तक्रार तुमच्या वरिष्ठांना करा, तुमच्या वरिष्ठ ऑफिसचे लोक आम्हाला कळवतील तेव्हा आम्ही चौकशी करू शकतो. अशी तुम्हाला हे करता येणार नाही. ज़िला उस्मानाबाद के तालुका वाशी में बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी का लालच देकर 15 लाख रुपये ऐंठने का मामला मंजर आम पर आया है। ज़िला उस्मानाबाद के तालुका वाशी में सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर 6 नौजवानों से 15 लाख रुपये हथियाने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में वाशी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुलजिमान में रईसुद्दीन नवाब हमीद ख़ाजी जो कि वाशी ही का साकिन है, इसके अलावा मुंबई के साकिन संजीव चंद्रकांत चांदेकर, उसी तरह मुंबई का एक और साकिन जिसका नाम सनी बताया जा रहा है, और मुंबई ही का साकिन स्वप्निल मोरे भी शामिल है। बाड़ा साहब पंडित सकाड़े ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 17/5/2024 से 6/1/2025 के दरमियान मुलजिमों ने सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर मुद्दई और गवाहों का एतमाद हासिल किया और 6 नौजवानों से मजमूई तौर पर 15 लाख रुपये वसूल कर लिए। ये रकम कुछ नकद और कुछ मुलजिम नंबर 2 के फ़ोन पे नंबर पर मुंतकिल की गई, जबकि बकिया रकम श्री स्वामी समर्थ नामी बैंक अकाउंट में जमा करवाई गई। मुलजिमों ने नौजवानों को बोगस ज्वाइनिंग लेटर देकर धोखा दिया। जब मुद्दई और गवाहों ने रकम वापस मांगी तो मुलजिमों ने 3,15,000 रुपये वापस किए, लेकिन बकिया 11,85,000 रुपये देने से इनकार करते हुए धमकियां देने लगे और टाल मटोल करने लगे। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस इंस्पेक्टर शंकर शिंदे के हुक्म से BNS की दिफात 318(2), 318(4), 351(4), 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस केस की तफ्तीश पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय सिंह भाले कर रहे हैं। जालना अंबड़ शाहराह पर अंतर वाली गांव से करीब पेश आए दिलखराश हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जगह पर ही मौत हो गई। गुज़िश्ता रात जालना अंबड़ मेन रोड पर अंतरवाली गांव के करीब होटल पृथ्वीराज के सामने मोटरसाइकिल और एक माल बरदार ट्रक नंबर MH19Z4325 के दरमियान ज़बरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में नंदू तोलाजी जेगे साकिन मठ पिपल गाँव तालुका अंबड़ ज़िला जालना मौके पर ही जाँ बहक हो गए। टक्कर इस कदर शदीद थी कि मोटरसाइकिल सवार को संगीन चोटें आईं और वो जाए हादसे पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही तालुका पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुताल्लिका ट्रक को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया।
इस मामले में तालुका पुलिस स्टेशन में इत्तेफाकी मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि मज़ीद तफ्तीश हेड कांस्टेबल अभिषेक शरगले कर रहे हैं। दरियासना हादसे की असल वजह और जिम्मेदारी तय करने के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज़िला बुल्डाना में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू पहुंची चिकल थाना एयरपोर्ट। रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर और मकामी इंतज़ामिया की जानिब से किया गया शाया निशान इस्तकबाल। एएमसी इंतजामिया को माली बहरान से बाहर निकालने मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर ने कस ली है कमर। हफ्तेवारी बाजारों में सब्जी फरोशों और दीगर व्यापारियों से लाइसेंस फीस वसूल करने की दी म्यूनसिपल कमिश्नर ने अपने मुलाजमीन को हिदायत। खवातीन बचत ग्रुप्स को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने 25 फरवरी से 1 मार्च तक इलाकाई, जिलाई और मिनी सरस सतह पर मुनक़िद की जा रही है नुमाइश। ज़िला कलेक्टर व ZP के CEO ने शहरियार से नुमाइश से फ़ायदा उठाने की अपील। और मुक़द्दस माह रमज़ान के पहले अशरे के 7 दिन हो गए मुकम्मल। बंदगान तौहीद रोज़े रखने में है मसरूफ़। इफ्तार के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के फल बाज़ारों में हैं दस्तयाब। कीमतें ज़्यादा होने के बाद भी कारोबार में हुआ है इजाफ़ा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।